Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of last 12 years of UGC NET. In this lecture, we will cover political theories introduction. So this is part 2 of this topic. We have to cover from the question 33rd. So let's begin. Who has commented that politics is about diversity and conflict and essential ingredient of its existence is scarcity? Who said this? This was said by लासवेल. ठीक है कि एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है पॉलिटिक्स के? स्कैसिटी. It is all about diversity and conflict. So this description linking politics to diversity, conflict and scarcity as its core is attributed to Harold Lasswell, famously defining politics as who gets what, when and how. ठीक है, ये famously किसने बोला है? Politics as who gets what, when and how. ये याद रखना. In context of a limited resources and competing needs, making it a struggle of distribution. ठीक है. Next question is, which of the following statement is not correct? Traditional political theory is prescriptive and normative. Yes. ठीक है. Behavioral political theory studies uniformities and regularities. Yes. Post-behavioral political theory is tied to action and relevance. ये किसने दिया है? डेविड ईस्टन ने. Yes. Post-behavioral political theory is not holistic. It is holistic. It is combining traditional and behavioral approach. It is combining action and relevance. It is combining data and values. So it is holistic. It is holistic. Which one of the following contentions of Isaiah Berlin is not true? ठीक है, Isaiah Berlin कौन है? He is a political thinker. Politics exists where ends collide. ये तो सही है. Ends का मतलब है, ends collide मतलब interests collide. किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी का end कुछ है, किसी का end कुछ है, तो वो collide करते हैं, वहाँ politics exist करती है. Rank imperialists caused decline of political theory. Yes. Political theory continues due to rational inquiry. Yes. Rational inquiry होगी तभी तो political theory continue होगी. He is skeptical about resurgence of political theory. Why? He will be skeptical about reason. तो उन्होंने तो resurgence of political theory की बात की है. उन्होंने बोला है कि political theory तो हमेशा ही चलती रहेगी. Why? Because men and human being are of this nature. They are rational. तो वो rational inquiry रुकेगी नहीं. ठीक है. तो रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लिए स्केप्टिकल नहीं है. मेन इसाया बर्लिन के कॉन्सेप्ट क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी पढ़ते हैं वो, एंड ही इज़ अगेंस्ट पॉजिटिव लिबर्टी. ठीक है. ही इज़ एडवोकेट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following said political behavior stands for both an intellectual tendency and a concrete academic movement? ऐसी बातें ना सिर्फ ईस्टर्न ही कर रहे हैं. ठीक है. फोर्थ आंसर डेविड ईस्टन. पॉलिटिकल पहले तो बिहेवियर की बात हो रही है, तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच स्टैंड्स फॉर बोथ. इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी भी है, कॉन्क्रीट एकेडमिक मूवमेंट भी है. तो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? ईस्टर्न कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? फिर से रिपीट हो रहा है, तो आवर आंसर विल बी 4. हिस्टोरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, हाइपरफैक्चुअलिज्म. पॉजिटिविज्म एंड हाइपरफैक्चुअलिज्म आर सेम थिंग्स. अगला है, मैच करना है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन को थिंकर्स से. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है. तो नॉर्मेटिव स्कूल कौन है इसमें से? देखो, हमें लर्नर के बारे में नहीं पता है एज सच. हमें गांधी और आमंड के बारे में. तो आमंड तो स्ट्रक्चरल सिस्टम्स अप्रोच वगैरह दे रहे हैं, तो ये तो नहीं है. और साइकोलॉजिकल भी नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल है. तो सी का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल स्कूल का आमंड. सी का हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. बी का 2, नॉर्मेटिव स्कूल क्या है? गांधी. ये तो पता ही है कि वो एथिक्स की बात करते हैं.
साइकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, डेनियल लर्नर, एंड टेक्नोलॉजिकल स्कूल क्या हो जाएगा, डेविड एप्टर। तो ये मॉडर्नाइजेशन की बात कौन कौन कर रहा है, नॉर्मेटिव में गांधी बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है वो। साइकोलॉजिकल में लर्नर है, स्ट्रक्चरल में आमंड है। स्ट्रक्चर्स में क्या बात कर रहे हैं, जब जब जैसे मॉडर्नाइज होते हैं तो वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस होता है। टेक्नोलॉजी के कारण मॉडर्नाइजेशन की बात कौन कर रहे हैं, डेविड एप्टर बात कर रहे हैं, ही इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस दिया है सैमुअल हंटिंगटन ने, यस। क्लासिकल थ्योरी जॉन लुइस गैडिस ने दी है, नहीं। एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा ने दी है, यस। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी एंथनी गिडिंस ने दी है, नहीं। तो आंसर विल बी 1 and 3। ठीक है, ये काफ़ी फेमस पॉलिटिकल थ्योरीज हैं। ये किस बारे में है, एंड ऑफ हिस्ट्री या एंड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड ऑफ हिस्ट्री। फ्रांसिस फुकुयामा बोल रहे हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री कब होगी, जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो कौन जीत गया, ग्लोबल लिबरलिज्म जीत गया, लिबरल वेस्ट की जीत हो गई। ठीक है, फिर हिस्ट्री एंड हो गई, नहीं हुई। कब नहीं हुई, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, अब आइडियोलॉजी का क्लैश नहीं है। आइडियोलॉजी का क्लैश कब था, कोल्ड वॉर में था। अब क्या है, सिविलाइजेशंस है, रिलीजियस बिलीव्स, सिविलाइज कल्चरल बिलीव्स, इन सब का क्लैश है। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व्स, इनकरेक्ट देखना है हमें। पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन, यस। थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, यस। इट प्रिस्क्राइब्स रूल्स फॉर गुड लाइफ, यस। पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्स इन आइसोलेशन, नो। आंसर विल बी 4। It never develops in isolations. Many factors impact political theory. There is no disinterested political theory. We read that. Next question is political theory deals with only ethical terms, no. Only scientific terms, no. Cultural terms, yes. But only cultural terms, no. Philosophical and empirical terms, yes. Both ethical and scientific are included in philosophical and empirical. Empirical is scientific methods, observations. Philosophical is normative method. Next is which one of the following is correct about political theory? Works only within boundaries of one country, no. Generalized statements about political life, yes. Never depends on concepts. Why never depend? It depends on concept. हम concepts ही तो पढ़ रहे हैं. Pure science only नहीं, इसके वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ. It is a generalized statements about political life. Next question is which one of the following is not related to political theory? Not. Studies values of society, yes. Studies political reality, yes. Examines advantages of political system, yes. ये तो नॉर्मल चीज़ें ही तो पढ़ेगा ही ना पॉलिटिकल थ्योरी में इंसान. Does not study relationships of concepts. Why? गलत है ये. पढ़ेंगे रिलेशनशिप, कौन से कॉन्सेप्ट से, लिबरलिज्म, लिबर्टी का रिलेशन विथ इक्वालिटी पढ़ना पड़ेगा, इन दोनों का रिलेशन विथ राइट्स पढ़ना पड़ेगा, तो रिलेशनशिप पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू पता करना है, ट्रू. पॉलिटिकल थ्योरी सीक्स ट्रुथ फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, certain individuals, no for all individuals. Aims to understand, explain and change society, yes. Has no role in removing imperfection, नहीं, उसका तो पर्पस ही है बेटर करना सोसाइटी को. No concern with what state ought to be. Why? It is concerned with on or with what state ought to be. इसलिए तो आइडल स्टेट के लिए तो ये लोग ढूंढ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, गुड लाइफ. So 2 will be our answer. To aim, it aims to understand, explain and change the society. Next question is match the following books with their authors.
ओके, सो ये जो भी हैं ज़्यादातर हम लोग रेगुलर जब हम पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ते, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पॉलिटिकल साइंस, अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस, वी डाइक ने लिखा है। तो ए का हो जाएगा 2, और आंसर विल बी 4। ठीक है, ए का हो जाएगा 2। पॉलिटिकल साइंस अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस एंड अ थ्योरी ऑफ एक्शन किसने लिखा है? गनिल ने लिखा है। द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है? क्रीक ने लिखा है। सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने किसने लिखा है? यूलाउ ने लिखा है। ठीक है, तो ये आप सारी बुक्स के नाम हैं, सारी बुक्स के नाम हैं यहाँ पे, और उनके ऑथर के नाम है, और वो कब लिखे हैं वो भी हैं, एंड इसमें उन्होंने किस बारे में बात की है वो भी है। तो आप PDF से रीड कर लेना है इसको अच्छे से फॉर नेक्स्ट पेपर्स की PYQ में। एक बार जब आ गया ना तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जब तक नहीं आया था तब तक ठीक था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो आर करेक्ट की बात है। सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक्स, येस। सोशल चेंज शुड बी इट्स मोटो, येस। इट लीड्स फॉर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस, येस। टेक्निक्स एंड क्वांटिफिकेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं है। किस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी? बिहेवियरलिज्म में। तो ABC विल बी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू नॉर्मेटिव थ्योरी। तो हमने जो जो पढ़े हैं ऊपर ऊपर से वो तो देख लेते हैं। तो डाहल तो है ही, तो C तो है, सॉरी नॉर्मेटिव थ्योरी है, मैंने बिहेवियरल थ्योरी समझ लिया। तो डाहल तो नहीं ही है, तो C नहीं है, तो और आंसर विल बी 3 और 4 में से ही एक। ठीक है, अब आर्थर बेंटले इज बिहेवियरलिस्ट, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, बाकियों के बाले नाम सुने हो या नहीं सुने हो। हीव साइमन इज नॉर्मेटिव, ये भी थोड़ा मुझे पता है। तो आर्थर कट जाएंगे अगर, तो ABD विल बी आर आंसर। बर्ट्रैंड जोवेनल, एरिक वर्गलिन एंड ईव साइमन, ये तीनों क्या है? नॉर्मेटिव थ्योरी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, नहीं हो गए, देयर वर 47 क्वेश्चंस इन यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी एज एन इंट्रोडक्शन. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Layers if you like the content. We will see you in the next lecture. Bye bye.